विक्टर पाउलो और सैमुअल ये दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, जिनका एक इन्वेस्टिगेको सोबरनेचुरल नाम से एक यूट्यूब चैनल है। एक दिन इन्हें एक महिला द्वारा बुलाया जाता है जो किसी आत्मा के प्रकोप को झेल रही थी। ये घटना ब्राजील की है। महिला बताती है कि घर में किसी आकस्मिक दुर्घटना के चलते उसकी भाई की मौत हो चुकी है और उसकी आत्मा किसी द्वेष के चलते उन्हें सता रही है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी के तनाव के चलते माँ ने भी कुछ दिन पहले ही दम तोड़ दिया। सैमुअल और विक्टर जब घर में जांच करने के लिए पहुंचते हैं तो चीजें काफी भयानक और हिंसक हो जाती है। Olha, pelo que eu entendi, né, seu irmão tá fazendo manifestação aqui, o clima tá muito pesado, não precisa chorar, fica calmo, fica tranquilo, tá bom? Tem como me mostrar onde foi esse banheiro? Só aqui no banheiro ali. Esse aqui, né? Aí, já começou! Por favor, minha mãe morreu! Como você vai me deixar em paz? Calma. Meu Deus, cara. Calma. Respira fundo, calma. Ó, ele só quer assustar, entendeu? Só quer te deixar desequilibrado, entendeu? Quer fazer com que a gente fique assustado, entendeu? Nervoso. Que o seu irmão faleceu. Calma. Pera. Calma, fica calmo. Respira, entendeu? Olha pra mim, ó. Foi isso, Vitor. O espelho quebrou sozinho. Meu Deus. Registrou isso, câmera. Tô arrepiado, cara. Vai, filma aí. Tu viu isso? Olha isso aí também, pô. É isso que é pra cuidar. Filma o espelho também, o espelho. O espelho, aí. Não, é isso aí. É isso, gente. Meu Deus. Vai, senta aqui, ó. Outra cadeira. Vem. Senta. Tô arrepiado, cara. Ó. Olha pra mim. महिला काफी टेरिफाइड और परेशान नजर आ रही है, लेकिन कुछ ही देर में चीजें असामान्य हो जाती है। Por isso a gente veio pedir, pessoal, pra vocês não julgar, viu? Tu viu o desespero dela, amiga, quando ela ficou chorando. Chorando, ela teve que sair, ela saiu às pressas Bem daqui. melhor, pessoal, ela sai. Tá aí, gente, ó. Aí é pra vocês verem, né, ó. Direto, acontece. Pega ajuda aqui, não. Pega, calma, respira. Segura a fumadora. Respira. Segura aqui a fumadora, segura. Entendeu? É até a oportunidade, né, de baixar a vibração e tentar a comunicação, né? Pelo menos uma comunicação mais amigável, né? पाउलो को कोनी के पास कुछ महसूस होता है, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। इसके बाद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अपना आगे का प्रोसेस जारी रखते हैं। Se você quiser se materializar em cima do Paulo, pode se apresentar aqui, né? Concentre sua energia. Se quiser pegar no braço do Paulo, na perna dele, no pescoço do Paulo, né? Vai, Paulo. Fica à vontade. Se concentra. Tenta pegar no pescoço do Paulo. Meu Deus do céu. Tá aqui, Olha, ó. Meu Deus. piado. Você não vai assustar a gente, entendeu? Deus é poderoso, Deus é maior que você. Você não é maior que Deus. Você não é maior que Deus. Você não é maior que Deus. Deus é muito maior que você. Você não vai assustar a gente. Ele tá querendo desafiar, mano. Acho que ele pensa que a gente quer bater de frente com ele, mano. Tô me tremendo todinho, cara. Olha isso, ó. Filma isso, câmera. Tô me tremendo todinho. Olha isso, susto que eu levei. अचानक से डेस्क की डोर जोर जोर से अंदर बाहर होने लगती है, जिसे देखकर जांचकर्ता भी घबरा जाते हैं। जांचकर्ताओं ने अपनी प्रोसेस पूरी की, साथ ही उन्होंने इस महिला को तुरंत उस जगह को छोड़ने की अपील की। तो क्या वो गोश्त सच में काफी एंग्री था? शायद उसकी कोई बड़ी द्वेष है, इस वजह से वो परिवार के लोगों को परेशान कर रहा है। एरिक, जिसका यूट्यूब पर प्रोजेक्ट घोस्ट नाम से एक चैनल है। एक रात एरिक ने एक प्राचीन कब्रिस्तान में प्रवेश किया। एक डेयरिंग के चलते एरिक रात के ठीक 3 बजे इस सिमेट्री के अंदर घोस्ट इन्वेस्टिगेशन करने जाता है। एरिक एक केटू मीटर के जरिए आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करता है। Give me any sign that you are here, so I can continue
Was that you knocking that door? Or the wall? Or behind me? I can't tell from the echo. Whoa, whoa, what the hell? The door's just locked. Oh my god. Dude. Okay. It's okay. That's okay. Thank you for communicating with me. Okay. Calm down, Eric. It's okay. Nothing's wrong. एरिक आत्मा से बात करता है और उन्हें दरवाजे को ओपन करके हॉल में बुलाने के लिए आमंत्रित करता है और कुछ ही सेकंड्स में दरवाजा ओपन होता है जैसे किसी अदृश्य ताकत वहां दाखिल हुई हो। इसके बाद एरिक को कब्रिस्तान के खुले में कुछ ऐसा दिख जाता है कि उसकी जान हलक में आ जाती है। Alright guys, so I've been sitting here, standing, nothing's happening, I've been quiet, I'm panicking, this is too much for me, I will be back. It's too much for me right now to handle and like. सिमेट्री में पेड़ के नीचे एक ब्लैक फिगर को खड़ा देखा जा सकता है जो काफी डरावना लग रहा है। एरिक ने क्या उस रात सचमुच पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैमरे पर कैप्चर की? क्या एरिक का सामना उस दिन किसी डीमन से या घोस्ट से हुआ था या फिर ये महज एक स्क्रिप्टेड घोस्ट हंटिंग एक्ट था? आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। इस अगले वीडियो फुटेज को रॉकलाइन डू नॉट क्रॉस नाम के एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। एक रात दोस्तों का एक ग्रुप फ्रांस की सड़कों पर इत्मीनान से चिल करते हुए ड्राइविंग कर रहा था। रात का समय था, मौसम अच्छा था और दोस्त एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी ये यात्रा एक खौफनाक मोड़ ले लेती है। रोड के किनारे उन्हें कुछ बेहद ही रहस्यमयी और स्केरी चीज के दर्शन हो जाते हैं। Super saxo chrono, oh le trottoir. Ça marche. Ça c'est de la puissance. Et on va faire. Eh mec, c'est quoi ça? Quoi? Où? Quoi? Eh mec, c'est quoi ça? C'est quoi? Oh putain, attends, fais demi-tour. Mais t'es malade? Quoi? Oh putain, attends, fais demi-tour. Oh mais ça se trouve c'est quelqu'un. Ici. Ça se trouve c'est quelqu'un. Waouh. C'est quoi ça? Non. Eh mais elle est psychopathe la gonzesse. Vas-y viens, on va voir. Vas-y. जैसे ही वो डीप नाइट में अंधेरी सड़क से गुजरते हैं तो उन्हें किनारे पर एक महिला नजर आती है जिसने कोई गाउन पहना है। इस फिगर को देखकर दोस्तों का समूह पैनिक हो जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें लगता है कि माजरा क्या है और जैसे ही वो गाड़ी को घुमाकर वापस आते हैं तो वो महिला कहीं गायब हो जाती है। वो महिला वहाँ क्यों खड़ी थी? क्या उसे मदद की जरूरत थी या फिर वो कोई आत्मा थी जो अक्सर लोगों को रात के समय दिख जाती है? आपका क्या मानना है? वीचेल में एक गैराज मौजूद है जहां पर खराब और क्षतिग्रस्त कारें लाई जाती है। एक रात पहले वहां एक गंभीर दुर्घटना हुई थी। इस गैराज का ओनर मार्कस गार्सिया है। एक दोपहर उन्हें कुछ बेहद अजीबोगरीब व्यू दिखाई देता है। अपनी खिड़की से बाहर वो देखते हैं कि उनका पड़ोसी किसी ऐसे शख्स से बात कर रहा है जो वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह शख्स हवा से बातें कर रहा है। क्या सच में यह आदमी किसी ऐसे शख्स से बात कर रहा है जो उसे दिखाई तो दे रहा है लेकिन कैमरे पर दर्शन नहीं दे रहा था? तो आपको क्या लगता है, यह शख्स क्या अपने आप से बातें कर रहा है या फिर यह सच में किसी घोस्ट से बात कर रहा था? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं। ये अगला वीडियो फुटेज एक सीसीटीवी कैमरे का है। कमरे के अंदर एक छोटी बच्ची अपने बिस्तर पर सोई थी, तभी वो किसी अननोन चीज को देखकर डर जाती है। उसे कुछ ऐसा दिख जाता है, काफी हद तक रहस्यमयी था। Is there a cat in here? Is there a cat in here? No. Oh, sorry. Love you, bye. Are you okay? What's wrong? No, it's okay. I was just checking on you. Good night. I love you. I can't read. Huh? I can't read.
scary? Huh? Why? It's a monster. It's really scary. There's no monster in the window. I'll look. See? I'll look. क्या आपने कुछ नोटिस किया? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बिल्ली जैसी फिगर आपको कमरे में एंटर होती दिखाई देगी और ऐसा प्रतीत होता है कि बच्ची ने भी उसे महसूस कर लिया हो। वो थोड़ा डर जाती है और इसके बाद जब माँ अंदर आती है तो वो बताती है कि वो डर गई है। माँ उसे दिलासा देती है और बोलती है कि वहाँ कोई नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के ये थे 5 मिस्टीरियस और स्कैरी वीडियो फुटेज। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।